Okay. So sun planet, what are the friends to the sun planet? Sun is the friend of moon, Mars, and Jupiter. So first you need to understand that sun is a universal Atmakarak. If a person doesn't have a good sun planet, person will not follow the integrity in life. Person will always feel very weak, will not be so good by health wise also, will not be so motivated in life, will having no motivation in life, there will be no goal, no visions, fire energy will be missing in the life. And you can interconnect this with your life, like compare your days when there is a winter and when there is a summer. So when there is a winter, then we feel like more lazy, we don't feel like waking up early in the morning, is it? We feel like coziness, we feel like, oh, let us sleep for 1 more hour. On the other side, in the summers when the sun is there in the sky, then you feel more energetic, you feel like it's a time to work on, is it right? So that is how the difference is shown in your birth chart also. If a person has a weak sun planet, that person will have no motivation in life, always low on energy, confidence will be missing, self doubt will be there, getting the appreciation of the work will become difficult, fan following will be less, people doesn't like them. On the other hand, people with a good sun, they have a good aura, they have a good, like, people follow them because of something, because of their, not necessary because of the beauty, but maybe because of the personality, the way they speak. A person want to become a good speaker, then the person should have a good sun planet. Sun is a king. पहली चीज आपको समझनी है कि सन प्लैनेट कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता है. लाइक अ किंग, king never do anything wrong with someone, is it? King always take a decision कि सबके हित में हो, is it right? Like if you talk about Narendra Modi, will he take any wrong decision जो हमारे against हो? He will not. No, ma'am. Yeah. Why? Because he is a owner, and he is coming from the government, so he will always take a decision what will be best for the country. The same way when it comes to your father, father always want to protect you. हमें लगता है कि हमारे ऊपर restrictions है, हमें लगता है कि हमें ऊपर strict हो रहे हैं, otherwise they always want to protect you. So what are the friends to the sun planet? The friends to the sun planet are Moon, Mars, and Jupiter. Enemies are Saturn and Venus. तो जो उनके दोस्त की कैटेगरी में आते हैं, सन की वो आते हैं, मून आता है, मंगल आता है. मून जो सन इज अ किंग, मून इज अ क्वीन. मार्स इज अ फ्रेंड टू द सन बिकॉज इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. एंड जुपिटर इटसेल्फ इज अ गुरु जो उसका दोस्त है. एनिमीज क्या है? सैटर्न. सैटर्न इज एंटी टू द सन. दोनों है तो फादर और सन. तो जिनके भी बर्थ चार्ट में आप देखते होगे सैटर्न एंड सन टुगेदर, Saturn and Sun together, कोई बच्चा का जन्म हुआ है and then the person is having a Saturn and Sun together. After the childbirth, more the problem mother is going to face because of the differences between the father and the son. So like 18 born people, what is 18 is all about? And Sun and Saturn. Sun, Saturn. Again, they both are anti. So these people will not have a so good relationship with the father. The same way in the birth chart, if you have a Saturn and Sun together, then differences will be seen between the child and the son. So in this case, it is advisable if somebody have a Saturn and Sun together in the birth chart, it is advisable कि इस बच्चे को एक टाइम आने के बाद अपने पापा से अलग रहना चाहिए. अगर नहीं रहेगा तो रिलेशनशिप इम्पैक्ट होते रहेंगे. एंड अगेन द वीनस इज एनिमी टू द सन. Neutral क्या है? Neutral is Mercury. Why neutral? Because Mercury is neutral to every other planet. Because Mercury acts as per the sitting planet. Sun is exalted in Aries. Sun is exalted because Sun is coming from the east. East is the first direction. That is the Aries. So Sun is exalted in the Aries. अपने से 7th में सब planet deblated. So Sun is exalted in the Aries. That is the direction of rising Sun. एंड सनसेट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है वेस्ट, जो कि होता है लिब्रा. तो एक आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, दैट जहां पर प्लैनेट बैठा होता है, जहां पर वो एग्जॉल्टेड होता है, द प्लैनेट विच इज एग्जॉल्टेड वेयर आफ्टर द 7th, एग्जैक्टली इन द 7th में वो डेप्लेटेड. जहां पर वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, अपने से 7th हाउस में जाकर वो अपनी पावर को लूज कर देता है. द सेम वे सन इज एग्जॉल्टेड इन द एरीज बट डेप्लेटेड इन द लिब्रा. सेक्स क्या है? मस्कुलर एनर्जी, दैट इज अ मेल. तो जितने भी मेल मेंबर्स है, आप उनके अंदर सन की एनर्जीज देखोगे. अब आप देखोगे अगर एक
फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलर एनर्जी को अगर कंपेयर करो तो मस्कुलर एनर्जीज के अंदर ज्यादा डोमिनेशन देखा गया. इज इट राइट? They have a more domination, they have a leadership quality as compared to the feminine energy. अगर एक feminine के अंदर ज्यादा domination देखा गया तो आप ऐसा बोल सकते हो कि उसके अंदर सन या फिर मंगल की ज्यादा एनर्जी. आपके घर में डायरेक्शन कौन सा? आपके घर में ईस्ट का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट रेमेडी आपको यहीं से मिल रही है. मेक श्योर करना है कि आपके घर में एक तो नेचुरल सनलाइट है. आपके घर में अगर नेचुरल सनलाइट नहीं आती है तब प्रॉब्लम है. आपके घर में ईस्ट वाला पोर्शन आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. और आप अपने ईस्ट के पोर्शन में, लेट्स से आपके घर में नेचुरल सनलाइट नहीं आ रही है, तो आप वहां पर कॉपर या फिर ब्रास का सन भी लगा सकते हैं. इससे आपके घर में इफेक्ट आ जाएगा, ओके द सन इज कम. या फिर आप वहां पर स्पॉटलाइट लगा सकते हैं. किसी भी तरीके से अपने ईस्ट में आपको हमेशा रोशनी रखनी. दिस इज द रेमेडी कमिंग फ्रॉम द सन डायरेक्शन. सन. What is a lucky stone? Ruby and garnet are the lucky stone. Okay, so ruby is a rectificator of the sun. रूबी बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको रूबी सूट नहीं करता है. मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर उनका सन थोड़ा सा भी सही होएगा तो उनको रूबी सूट कर जाता है. लकी कलर्स क्या होते हैं? लकी कलर्स होता है ऑरेंज, सैफ्रॉन, लाइट रेड. So these all colors. So if a person is lacking a confidence in the life, या उसको सेल्फ डाउट होता है, या फिर लाइफ में मोटिवेशन नहीं है, और द पर्सन इज नॉट अ गोल ओरिएंटेड, इन दैट केस आप उसको बोल सकते हो स्टार्ट वेयरिंग द ऑरेंज कलर क्लोथ, स्टार्ट वेयरिंग द सैफ्रॉन कलर क्लोथ एंड लाइट रेड कलर क्लोथ. लकी नंबर कौन से इनके होते हैं? फर्स्ट, 7, 1, 10 एंड 9. दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 ओनली. कौन से भगवान को प्रे करना चाहिए? टू एनहांस योर सन प्लैनेट, आपको शिवा को प्रे करना चाहिए. आपको जितना ज्यादा आप अग्नि फायर करते हैं, लाइक आप हवन करते हैं अपने घर में, तो एज पर द वास्तु आपको एवरी 15 डेज अपने घर में हवन करते रहना चाहिए. बिकॉज सन क्या करता है? आप फायर आपके घर से निगेटिविटी को रिमूव करता है. तो आपको जितने ज्यादा फायर रिचुअल्स करते हो, लाइक आप मनी रिचुअल्स कर रहे हो फायर के, या आप अपने घर में हवन कर रहे हो, या फिर आप अपने घर में दिया भी जला रहे हो, तब भी कहीं ना कहीं वो उसका कनेक्शन होता है सन प्लैनेट से, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द फायर एलिमेंट. लॉर्ड नारायण से भी आप प्रे कर सकते हो, बिकॉज, और लॉर्ड सन, बिकॉज लॉर्ड सन, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, ये सब एक ही अवतार है. मंत्र क्या होता है? ओम आदित्याय नमः, एंड दैट इज 7,000 टाइम्स इन 30 डेज. ओके. सन की दशा क्या होती है? सन की महादशा होती है 6 इयर्स की. सन की महादशा में क्या होएगा? बंदे को लाइट आई. लाइट, सन का काम क्या है? हमें लाइट देता है. द सेम वे जब भी बंदे की सन की महादशा चलेगी तो उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, लाइट आएगी. उसको क्या मिलेगा ड्यूरिंग दैट टाइम? नेम, फेम, सक्सेस, लाइमलाइट में आ जाएगा. बच्चा हो सकता है, किड्स एंड एजुकेशन, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द लियो. लियो विच इज ओनिंग द 5th हाउस. उसकी एजुकेशन अच्छी हो सकती है अगर किसी की करियर टाइम पर सन की महादशा चल गई. लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस, आपकी लाइफ में काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस आ जाती है, बिकॉज सन इज अ वेरी मेच्योर प्लैनेट. Sun is not at all a planet of the cripping. Sun is a planet of the action. Sun is a planet of the goal. Sun is a planet of the vision. So बंदे के अंदर काफी मोटिवेशन आती है, लॉट ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाती है. पर्सन विल एडमायर्ड फॉर देयर वर्क. पर लोगों को अपने काम की वजह से एप्रिसिएशन मिलना स्टार्ट हो जाता है. बट रिजल्ट विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ द प्लैनेट, हाउ गुड द सन प्लैनेट इज. तो आपको कैसे पता चलेगा कि बंदे का सन प्लैनेट अच्छा है कि नहीं? गुड सन पर्सन विल ऑलवेज बी द लीडर इन द हाउस. अगर जो बंदा आपके घर में लीडर है, नॉट नॉट लाइक दैट कि आपके फादर लीडर है या आपकी मदर लीडर है, हो सकता है एक बच्चे ही लीडर हो, उस बच्चे के बिना परमिशन के घर में कोई कुछ नहीं कर रहा है, तब भी बच्चे का सन बहुत अच्छा है. या हर एक बंदा कुछ भी अपने घर में काम कर रहा है तो उस बच्चे से डिस्कस करता है, तो आप समझ जाना बाय डिफॉल्ट उसका सन अच्छा है. So people who are the good leader professionally, they don't listen to others. If the sun is bad, they will listen to. जो लोग अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से नहीं ले पाते, पीपल हु कैन टेक देयर डिसीजंस बाय देयर ओन, दे ऑलवेज लास्ट अदर पीपल. क्या हम ये ऐसा करें, क्या हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा करें, या उनको हमेशा डाउट होता है, या फिर उनको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है. जब भी आप कुछ करने जाते हो तो आप 10 लोगों से डिस्कस करते हो क्या हम ऐसा करें. दैट मीन्स द पर्सन हैज अ बैड सन. गुड सन, आपने अपनी लाइफ में जो डिसाइड कर लिया आपको ये करना है तो करना है. नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट, बिकॉज सन गिव्स यू ईगोइस्टिक नेचर ऑल्सो, एंड समटाइम गिव्स यू द स्टबर्न नेचर ऑल्सो. If sun is bad, they will listen to all. You can't influence people with a strong sun because they have a clarity in mind. जिनका सन काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है आप उनको इन्फ्लुएंस इजीली नहीं कर सकते हो. लाइक इफ यू टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, कैन आप प्रोटेस्ट करते हो, आप चीजें करते हो, आप देखते हो कि गवर्नमेंट अपनी बातों पर स्टिक रहती है. इज इट राइट? एक बार उन्होंने जो निकाल दिया वो निकाल दिया. सेम अप्लाइज टू योर फादर, सेम अप्लाइज टू योर बॉस. आपका जो बॉस ने जो बोल दिया वो बोल दिया. दैट इज हाउ द सन इज. तो
दो तरीके हैं, आप बिना किसी का बर्थ चार्ट चेक करें आप ऐसा भी देख सकते हो. If the person is easily influenced by others, that means the person has a bad sun. If the person is not easily influenced by others and stick to things what the person want to do, like वो stubborn हो सकता है, वो goal oriented हो सकता है, वो vision oriented हो सकता है, दुनिया उसको कुछ भी बोले ये गलत है ये सही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना काम करता रहेगा जो भी उसके goals and visions है. Now, what is the sign of the good sun? The sign of the good sun is first, without checking the birth chart, आपको पता चल सकता है अगर एक बंदे का sun planet अच्छा है. पहली चीज है कि बंदा जो जब चलता होगा, the person will always walk straight. जितना ज्यादा जो बंदा straight चलेगा, उसका sun planet अच्छा होएगा. जितना ज्यादा लोग झुककर चलते हैं, उनका sun planet अच्छा नहीं होता. sun planet आपका अच्छा होता है in your teenage, in your mid age. आगे जाकर after the age of 36 आपकी लाइफ में malefic planet का influence ज्यादा आ जाता है, like राहु, केतु एंड शनि. तो आप नोटिस करते हो कि जैसे जैसे बंदा बड़ा होता जाता है तो उसकी पीठ झुकती जाती है. इसका मतलब क्या है? सन की एनर्जी कम हो रही है, तभी उसकी हेल्थ इश्यूज होते हैं, मोटिवेशन कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, विटिलिटी कम हो जाती है, लाइफ फोर्सेस उसके कम हो जाते हैं. क्लियर है? टॉक सीइंग इन द आईज. सबसे पहली चीज है कि कोई भी बंदा आपसे जब कोई बात कर रहा है और वो आपसे आई कांटेक्ट करके बात कर रहा है, दैट मीन्स द पर्सन हैज अ गुड सन. द पर्सन इज फॉलोइंग द इंटीग्रिटी. अगर कोई बंदा आपसे आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर रहा है, दैट मीन्स द पर्सन विल नॉट हैव अ गुड सन. ब्लंट, काफी ब्लंट, मतलब what is there inside that will be outside. Without any filter that person will speak. Very straightforward. अब आप अपने घर पर ही देखो आप, so like your father explain you anything, तो उनका explain करने का तरीका बहुत blunt है. Is it? ये करना है तो करना है. And the same topic, if your mother will explain you, she will be little bit softer. You need to do this. Is it right? Because the masculine energy being noticed in the father and the feminine energy in the mother. Any questions so far? मैम हम ऐसे रीड करेंगे जैसे So what is the sign of the weak sun? Can't express their feeling, does not want to offend anyone. ऐसे लोग अपनी feelings को share नहीं कर पाते, इनको ऐसा लगता है कि यार उसको दुख ना हो जाए, इसको ऐसा ना लग जाए. So they just try to keep their feelings within themselves. Very diplomatic. Always look for help. अगर किसी का सन स्ट्रांग होएगा, वो अपनी लाइफ में कभी हेल्प नहीं मांगेगा, उसको लगेगा मैं खुद से कर लेता हूँ. Why to require help? ऑन द अदर साइड, अगर किसी का सन अच्छा नहीं होएगा, तो उसको अपनी लाइफ में हर एक पॉइंट पर किसी की हेल्प चाहिए. कैन यू हेल्प मी इन दिस? तो ज्यादा जो हेल्प मांगते हैं, दैट मीन्स दे हैव अ वीक सन. दशा इम्पैक्ट, पर्सन विल स्टार्ट मेकिंग बाउंड्री. जैसे ही आपकी सन की महादशा चलेगी, आपके अंदर फायर एनर्जी ज्यादा होगी, आप अपनी लाइफ में बाउंड्रीज बनाना स्टार्ट कर दो. अब आप अपनी ही जोन में रहोगे. जो किंग है वो अपनी ही जोन में रहता है, उनको जो करना है करो. यू बिकम लाइक दैट कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है what other people are thinking about you. Because now you become more emotionless person, more practical person. That dasha show you the impact in your life. Non-reactive, very disciplined in life. If sun is afflicted, person keep on changing the mantra, always confused with mantra to chant. अगर एक बंदे का आपने, and this is a very common problem you see as an astrologer, like if the sun is afflicted in person's chart, the person is very much confused मैं कौन सा मंत्र अभी चैन करूं, मैं कौन से भगवान को भी प्रे करूं. And if your sun is good, you will stick to one thing. This is what I am going to do. So this is a sign of the weak and the good and the bad sun. What are the articles of the donation? If you feel like that a person doesn't have a good sun planet, or there is a conjunction of the sun and Saturn together, due to which there is a problem which a person is facing or the father is facing in the life, in that case, you should article to be donated, wheat need to be donated, copper need to be donated, ruby need to be donated, jaggery, red cloth, red flowers, sandalwood, saffron. What is the donation time of doing this? The best thing that you want to donate for the sun is during the sunrise on the Sunday. How people look like when they have a high influence of sun planet in the life? The eyes will be honey colored eyes. Square in shape, जो उनका face होता है वो square in shape होता है. उनके जो hairs होते हैं short hairs होते हैं. अगर आपने देखा होगा most of the politicians, women, always you will find them in the short hair. yes ma'am. Because they have a high influence of sun planet in the life. हाइपर इरिटेबिलिटी होती है, बहुत इरिटेशन होती है, आपकी आईसाइट भी वीक होती है, और वेल प्रपोर्शनल बॉडी होती है. आपकी जो बॉडी होती है, आपकी जो पर्सनालिटी होती है, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है. डिजीजेस क्या होती है सन प्लैनेट से कनेक्टेड? हार्ट डिजीजेस, बोन फ्रैक्चर, माइग्रेन प्रॉब्लम, जॉइंटिस प्रॉब्लम, फीवर, बर्न्स, कट्स,
wounds, skin diseases, weak eyesight, stomach related problem, mental related problem, headache related problem, loss of appetite and the diarrhea too. So like आपको skin diseases हो जाती है, heart से related जितनी भी ये problems यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपका सन afflicted है या फिर आपका सन बहुत ज्यादा powerful है, दोनों ही केस में आपकी ये आपको बीमारियां होने की हाई पॉसिबिलिटी है. Because the most powerful planet as well as the afflicted planet both gives you the problem in the life. What does the sun represent? Sun represent the soul, ego, आपका यूनिवर्सल आत्म कारक है, आपकी विटिलिटी का कारक है, मतलब कैपेसिटी टू लिव एंड डेवलप. आपके अंदर एनर्जी कैसी है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है जो हम पढ़ते थे, फोटोसिंथेसिस बिकॉज ऑफ द सन, इज इट? सन विल हेल्प यू टू प्रोसेस दैट. सो कोई भी चीज जिसके अंदर कैपेसिटी है टू लिव एंड डेवलप, स्ट्रेंथ एंड द कैपेसिटी द पर्सन है. क्या क्या और रिप्रेजेंट करता है? पॉलिटिकल, रॉयल, बंदा दिखने में बहुत रॉयल दिखता होगा, आपका स्टेटस पर काफी वैल्यू देता होगा. अनैचुरल आत्म कारक, ड्राई प्लैनेट, लिटिल टू नो एटमॉस्फेयर, रॉकी, कैन हैव माउंटेन्स, अ सोर्स ऑफ लाइफ, हीट एंड एनर्जी. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब एक बहुत रॉकी एरिया है या फिर जहाँ पर बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं या फिर जहाँ पर जो एटमॉस्फेयर, देयर इज अ वेरी लिटिल टू नो एटमॉस्फेयर, that means there is a high influence of sun in these areas. अब the sun in the various planet gives the following illness. अब sun किसी के साथ कंडीशन में आता है, जैसे कि सन और लियो जब साथ में आएंगे या सन किसी लियो की राशि में साथ में सन अगर लियो में बैठेगा तो क्या होगा? बंदे को फीवर होगा. फीवर क्यों होता है? फीवर तब होता है जब आपकी बॉडी में फायर तत्व ज्यादा हो जाता है, इसे तभी तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है. क्लियर है? सो जब भी सन लियो में आएगा, जब भी आपकी लाइफ में फायर एनर्जी ज्यादा होगी, तब आप देखोगे आपको गर्मी हो जाती है, तब आप देखते हो कि आपको फीवर हो जाता है, स्किन में रैशेस हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी होती है. मून के साथ आता है सन तो क्या होता है? हाईली टेम्परामेंटल बन जाता है, अप्स एंड डाउन देखा जाता है. स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट वर्स्ट इन द लाइफ. अब आप सन और मून का जब भी आप किसी तरीके से कंडीशन देखो, जैसे कि किसी का सन कैंसर में बैठा हुआ है या फिर सन और मून बैठा हुआ है साथ में, अमावस्या बोर्न पीपल, या फिर आप ऐसा मान लो कि किसी का मून लियो में बैठा हुआ, तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत निगेटिव सोचते हैं. लाइक दे ऑलवेज थिंक कि कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा. दे ऑलवेज, जो इनका स्टेट ऑफ माइंड होता है, दे कैन थिंक वर्स्ट इन देयर लाइफ, कि और क्या हो सकता है, व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट वर्स्ट इन देयर लाइफ. सन और मंगल साथ में आएगा किसी फॉर्म में, तो बंदा एनेमिक हो सकता है, उसको ब्लड रिलेटेड इश्यूज होते हैं, लो बीपी प्रॉब्लम, माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होती है, सेंस ऑफ बैलेंस इज नॉट गुड इन द लाइफ. अगर सन और मर्करी साथ में आता है, a sharp shooting or stapling pain that occurs along the nerve pathway due to damage or irritation to the nerve, and it gives you the migraine related problem too. Why? Because Mercury is connected to your logical mind, and Sun, which gives you the fire element in your mind, that gives you the migraine issues. जुपिटर के साथ अगर सन आएगा किसी भी फॉर्म में, तो उसको जॉइंटिस रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, लिवर गॉल ब्लैडर डिजीजेस देता है. वीनस के साथ आता है तो पेनफुल आपको यूरिनेशन से कनेक्टेड प्रॉब्लम देगा, बर्निंग सेंसेशन देता है, इन्फ्लेशन देता है ब्लैडर में. सैटर्न और सन जब साथ में आते हैं तो बंदे को लो बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है. सन और राहु अगर साथ में आते हैं तो मेंटल डेफिशिएंसी देता है, डलनेस देता है, फॉरगेटफुलनेस देता है. केतु के साथ सन आता है तो आपको लो बीपी देता है, आपको चेस्ट पेन देता है ड्यू टू द ब्लड फ्लो ड्यू टू द हार्ट, एंड इट गिव्स यू द ओवरऑल, इट गिव्स यू लॉट ऑफ चेस्ट पेन, बिकॉज केतु आपका सिर्फ चेस्ट है, इट इज नॉट अ हेड, सो लोअर पार्ट में आपको काफी ज्यादा पेन देता है. What will happen when the sun is going to sit in the different houses? When sun is going to sit in the first house, sun in the Lagna makes one restless nature, good leadership qualities, ego problems, self-centered, if it is in the sign of 5th, 9th or 11th. What exactly sun is? Sun is a fire element, and sun is connected to ego also. The person will be having a more muscular energy and carrying this energies from the past life. तो अगर सन लग्न में बैठेगा तो बंदे का माइंड बहुत रेस्टलेस होएगा, बिकॉज मोर फायर एनर्जी, मोर रेस्टलेस इन द माइंड, ईगो प्रॉब्लम देगा, गुड लीडरशिप क्वालिटी देगा, बट उसको बर्निंग प्रॉब्लम भी देगा. व्हाई बर्निंग प्रॉब्लम? बिकॉज नाउ सन इज सिटिंग इन द फर्स्ट हाउस, जो कि सन किंग है. अब उसकी अगर कोई सुनेगा नहीं या फिर उसको वो लीडरशिप का रोल नहीं मिलेगा, then he will always be frustrated in the life, because sun will be sitting in the first house. Otherwise the aura will be good,
पॉजिटिविटी विल बी देयर बिकॉज सन ईस्ट से आ रहा है और बंदे के पास ईस्ट है. इट्स अ गुड पोजिशन बिकॉज सन इज exalted in the Aries also. More female child if it is in the Pisces. Heart diseases if it is in the Aquarius. आपको हार्ट डिजीजेस देता है अगर अगर आपका सन एक्वेरियस में बैठा हुआ है, तो आप देखोगे कि बंदे को हार्ट डिजीज देगा और साथ में उसके फादर को भी हार्ट डिजीजेस देने की पॉसिबिलिटी होती है. ग्रेइंग ऑफ हेयर्स इफ अफ्लिक्टेड इन लग्ना, बिकॉज लग्ना बताता है कि आप दिखते कैसे हो. तो आपके हेयर्स को ग्रे करने का रीजन, व्हाइट करने का रीजन भी सन है. तो अगर आपके लग्ना में सन अफ्लिक्टेड है तो आपकी एज से पहले आपके हेयर्स व्हाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं. आई प्रॉब्लम इफ इट इज इन द साइन ऑफ 1 और 4. अगर आपका एरीज में बैठा हुआ है जो कि उसका एक्सॉल्टेड पोजीशन है तो आपको आईज प्रॉब्लम देता है. अगर आपके 4 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, कैंसर में बैठा हुआ है, तब भी आपको आईज रिलेटेड इश्यूज देगा. Poverty in the Libra Lagna 7 to 13, that will be going to give you the poverty in the Libra Lagna. Why? Because अगर सन आपके Libra Lagna में फर्स्ट हाउस में बैठेगा तो कहीं ना कहीं सन उनका डेबिलेटेड हो जाएगा. It will be in the debilated position. Sun and Moon together, person born on the Amavasya day, fickling mind. उसके पास सब कुछ होएगा, हो सकता है वो बंदा बहुत वेल्दी हो, उसके पास सब कुछ हो, बट माइंड बहुत ही अनस्टेबल होएगा. मे बी डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा होएगा. माइंड विल बी अ वेरी अनस्टेबल. सन प्लस राहु टुगेदर फॉरगेटफुलनेस देता है, आई डिफेक्ट देता है, हाइपरटेंशन देता है. दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, दैट इज सन देयर विद अ राहु. Now what will happen when the sun is going to sit in the second house? Sun in the second house, one is able to manage the material resources, scientific bend of mind, self acquired wealth, litigation problem, ill health, expenses thereon. अब सेकेंड हाउस आपका बताता है अबाउट योर थिंग्स, लाइक हाउ यू आर मैनेजिंग थिंग्स, लाइक योर फिनेंसेस, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स. अब आपका फैमिली का भी घर है, आपको अपनी फैमिली से कोई एंसेस्टर, कोई प्रॉपर्टी मिली या आपको कोई पोजीशन मिला, क्या उसको आप सस्टेन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे. तो अगर सन यहाँ पर बैठेगा तो बंदा अपनी मेटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब अपनी मटेरियल थिंग्स को काफी अच्छे से सस्टेन कर पाएगा. बंदे का जो माइंड होएगा दैट विल मोर इनटू द साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड. Sun is not a religious planet. Sun is a very, maybe the person is into the spirituality, जो बहुत scientific bent of mind का बंदा है, not necessary to be a religious one. बंदे का सन काफी अच्छा होएगा बिकॉज सन अगर उसके सेकेंड हाउस में बैठेगा तो उसकी सेल्फ एक्योर्ड वेल्थ होगी, अपनी खुद की वेल्थ बनाएगा. लिटिगेशन प्रॉब्लम देगा बिकॉज सन सिटिंग इन द सेकेंड हाउस. इट गिव्स यू द प्रॉब्लम इन द मैरिज टू, बिकॉज सेकेंड हाउस आपका फैमिली एक्सटेंशन का है और आपकी फैमिली एक्सपेंशन का है और वो आपकी मैरिज के बारे में भी बताता है. तो अगर सन जैसे प्लैनेट अगर सेकेंड हाउस में बैठेगा तो हाई पॉसिबिलिटी होती है कि बंदे की लिटिगेशन प्रॉब्लम आती है, मैरिज में प्रॉब्लम आती है और वो लीगल इशू तक जाती है. इल हेल्थ देता है एंड एक्सपेंसेस देयर ऑन, बिकॉज सन इज व्हाट, सन इज अ फायर एलिमेंट जो कि आपको खर्चे भी कराए. अगर आपका थर्ड हाउस में सन बैठेगा तो सक्सेस आफ्टर द सफरिंग, बंदे को सक्सेस मिलती है आफ्टर द सफरिंग बिकॉज थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ कनेक्टेड टू, लाइक विद द हेल्प ऑफ यू एडिंग ऑन द स्किल्स एंड नॉलेज आप अपने थर्ड हाउस को चेंज कर सकते हो. तो अगर सन थर्ड हाउस में बैठा है तो बंदे के पास कॉन्फिडेंस होएगा, बंदे को लोग सुनना चाहेंगे, उसकी कम्युनिकेशन काफी अच्छी होगी. अच्छी की मतलब है कि कैन बिकम अ गुड स्ट्रॉन्गर, गुड पर्सनालिटी, गुड कॉन्फिडेंस, काफी स्ट्रॉन्गर होएगा, जिसकी वजह से उसको आपको अपनी लाइफ में सक्सेस के बाद अ पर्सन कैन आफ्टर द सफरिंग दैट पर्सन कैन गेट द सक्सेस. अनफ्रेंडली टू हिज रिलेटिव्स बिकॉज कहीं ना कहीं जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी वो काफी ज्यादा ब्लेंट होगी, काफी ज्यादा फायर होगी. तो अच्छा रिलेशनशिप अगर कोई बना पाता है अपने रिलेशनशिप के, अपने रिलेटिव्स के साथ, वो बनाता है गुड मून एंड द वीनस प्लान. बट यहाँ पर अगर थर्ड हाउस में सन बैठेगा तो द पर्सन विल बी वेरी अनफ्रेंडली टू द रिलेटिव्स और यू कैन से वेरी ब्लंट टुवर्ड्स द रिलेटिव्स. वेल्दी एंड करेजियस एंड कैन बिकम अ गुड स्पीकर टू. फोर्थ हाउस में अगर सन बैठेगा तो क्या बनाएगा, आप हार्ट की जगह पर सन बैठ गया, आपका दिल है, कैंसर का हाउस है, आपके इमोशंस है और वहां पर आपका बैठ गया है सन, तो बंदे को क्या बना देगा, हार्टलेस बना. अब वो धीमे धीमे कर कर वो अपनी लाइफ में इमोशन लेस बन जाएगा. क्यों? क्योंकि सन एक फायर एलिमेंट है. आपको वहां पर जरूरत क्या है, आपको फोर्थ हाउस में इमोशंस की जरूरत है. सो द पर्सन विल बिकम हार्टलेस देयर. सेल्फिश ऑल्सो, अपने काम को निकलवाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है. ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दे सकता है या मदर को भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दे सकता है, मदर को भी हार्टलेस बना सकता है. सन इन द फोर्थ टू द 10th हाउस, हार्ट प्रॉब्लम टू द फादर एंड द स्टमक प्रॉब्लम. अगर सन फोर्थ में बैठता है या फिर 10th में बैठता है, बिकॉज 9th और 10th दोनों ही
आपके फादर के बारे में बताते हैं। और अगर सन 9th और 10th में बैठता है तो हार्ट प्रॉब्लम देता है फादर को अपनी दशा में, स्टमक रिलेटेड इश्यूज देता है। किसी को भी अगर डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसका एक कारक उनका सन भी है। कहीं ना कहीं उनका सन और सैटर्न साथ में बैठेगा, या फिर उनका सन एफ्लिक्टेड होगा किसी तरीके से, तब भी उनको डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। इन द फीमेल चार्ट प्रॉब्लम इन द मैरिज, अगर सन किसी का 4th हाउस में बैठेगा तो प्रॉब्लम देता है मैरिज में, बिकॉज आपके डोमेस्टिक लाइफ में आपको क्या चाहिए, आपको डोमेस्टिक लाइफ में चाहिए सॉफ्टनेस, मूड। प्लैनेट लाइक अ मून। बट वहां पर अगर फायर एलिमेंट बैठ जाएगा तो आपको क्या देगा, एग्रेशन देगा, डोमिनेशन देगा अपनी डोमेस्टिक लाइफ में। दैट विल नॉट बी गुड इन द मैरिज। बट अगर एक फीमेल के चार्ट में होगा तो बंदी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ले सकती है। पर्सन कैन गेट द इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज सन वहां पर बैठकर आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी दिला सकता है। एनी क्वेश्चन सो फार?